कि भाई एक ज़ैबिस का स्टूडेंट इस लाइन ऑफ वर्क में आया कैसे? मुझे पता चला कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस ओनर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे हैव सम टेक्निकल बैकग्राउंड। पेरेंट्स शुड बी हैप्पी कि मार्वल सीरीज बच्चों को दिखाएं, बिल्कुल, शायद वो इंस्पायर होके मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर बन जाए और मे बी दे कैन फाइंड आउट देयर ओन वेज कि हमने क्या करना है। सो मैकेट्रॉनिक्स है क्या? मतलब इट साउंड्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 वर्ड्स। या एग्जैक्टली, सो इट्स लाइक mechanical, electronics, and then software engineering. So it's basically a robotics. It's really interesting because I have seen humanoid robots talking with another humanoid robot as well. They will replace soldiers. आपकी जगह एक रोबोट ही बैठा हो और वो आपके सारे काम कर दे and you are enjoying in a beach in this weather. So of course please आप you would love to have मैं तो it, कमीशन करने को तैयार हूँ, मुझे रिप्लेस कर। Let's talk about scenarios that creates that. So basically पाकिस्तान में there are multiple reasons. One of the major reason is shaft cutting machine, जो लोग गांव देहात में चारा काट रहे होते हैं. Second reason is electrocution. Third reason is congenital disorder by birth. So एक second, you're telling me कि natural disease or disorder is third, yeah. and the actual हाथ मशीन में आ गया is number one. जो कि अवेयरनेस से सॉल्व प्रिवेंटेबल है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, प्रिवेंटेबल है, अवेयरनेस से सॉल्व हो सकता है। इवन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंट्रोड्यूस कि जी आपने सेफ्टी लगानी है, वी विल पे यू 5,000 रुपीज अगर आप वो सेफ्टी अपनी मशीन के अंदर लगा देते हैं। सेफ्टी जो उनका एक मैकेनिज्म था, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते और हमें पैसे कम बनेंगे। उसकी वजह से दे हैव टू टेक द रिस्क टू लूज देयर लिम्स। और ये बहुत ये तो आर्म्स दिखा रहे हैं, व्हाट अबाउट लेग्स? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें डॉक्टर्स ने कहा था कि डोंट मेक आर्म्स मेक लेग्स। सो वी आस्क्ड व्हाई, तो उन्होंने कहा गरीबों के हाथ कटते हैं, अमीरों की टांगें कटती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द डायबिटीज एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द लेबर इंटेंसिव वर्क। व्हाट्स प्रोबेबली द मोस्ट टचिंग स्टोरी you've heard? So every story is really special. Like there are very special moment when somebody is receiving their prosthetic. Picture scroll कर रहा था and then I saw कि यार ये एक बंदा है मेरा, उसके दोनों हाथ नहीं है, एक ही हाथ उसको लगा हुआ है और वो उसी हाथ से दुआ मांग रहा है। तो मैंने कहा यार ये कितना उसके लिए पावरफुल है कि मतलब मेरे पास ये नहीं होगा तो मैं दुआ किस तरह से मांगूंगा। So it's because it's really personal for them, right? In this one story that we have today about bionics, which is prosthetic limbs, this story really caught my attention. There's a video that we'll run for you to see and show you what they do. But Anas, a graduate of Zabist, Forbes 30 under 30 in Asia, is working on creating prosthetic limbs for people who are amputees. And the work they're doing is phenomenal because they're doing it at a fraction of the price compared to the rest of the world. Check out this episode of DigiTales. You will learn a lot about AI, about bionics, about humans transforming into robots, and how the lives of people who are unfortunately living without a limb, how their lives are being transformed. Anas Niaz, how are you today? I'm good, great. Good to have you. I came across a story, मेरे बड़े करीबी दोस्त अवाब, डॉक्टर अवाब अलवी ने मुझे भेजा और कहा कि यार you have to meet this guy. फिर उसने मुझे वो बताया कि what you do, and I was fascinated कि यार पाकिस्तान में ऐसा काम हो रहा है prosthetic limbs का, ठीक है? And then I did some research on you. You're a Zabist student, a student of mechatronics from Zabist just a few years ago बल्कि you're Forbes में Asia में 30 under 30, and you're in the business of making prosthetic limbs and really मतलब changing the lives of the people who are suffering. तो walk me through, let's start from the beginning कि भाई एक Zabist का student इस line of work में आया कैसे? So the best part is before the Zabist as well, so I was fascinated by Marvels. So okay. I used to watch the series and everything. So it was always a dream कि यार because since Iron Man बनना था, बनाना था, अच्छा बनना नहीं था, बनाना था। Of course, like वो बनने के लिए भी you have to do something, right? But उसके साथ साथ मुझे business भी करना था and social work भी करना था. So it's like really difficult कि आप social work भी करें, business भी करें, and उसके साथ साथ technology भी होनी चाहिए. So that was something in my mind before the university. ठीक है. Then I did some research.
और मुझे पता चला कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे हैव सम टेक्निकल बैकग्राउंड. सो आई थॉट कि यार कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो कि मुझे सबका फ्लेवर दे दे. सो द मैकेट्रॉनिक्स वाज वन ऑफ द इंजीनियरिंग जिसके अंदर रोबोटिक्स में सब आप पढ़ लेते हैं. सो द इंटेंशन वाज नॉट टू डू द हार्डकोर टेक्नोलॉजी बट टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ. तो इसका मतलब मैं ये जो टेक अवे ले रहा हूँ कि पेरेंट्स शुड बी हैप्पी कि मार्वल सीरीज बच्चों को दिखाएं. बिल्कुल. शायद वो इंस्पायर होके मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर बन जाए और मे बी दे कैन फाइंड आउट देयर ओन वेज कि हमने क्या करना है. So mechatronics है क्या? मतलब it sounds like a combination of 3-4 words. Yeah, exactly. So it's like mechanical, electronics, and then software engineering. So it's basically a robotics. ठीक है. So it's all robotics. So it's all robotics. It's how steel, electricity, and some code come together to make something live and do some stuff like robots and all. And I didn't realize यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है mechatronics. It's been for so long. Zabas ने तो काफी अर्से 10-12 साल से स्टार्ट किया है, but before that NUST में होता है और भी जगहों पे होता है. And it's a really good degree because इसमें आपके पास जो चीजें लर्निंग होती है बहुत ज्यादा डाइवर्स होती है. So does it take a certain mind or a certain जिसे कहते हैं ना O level, A level या इंटरमेट्रिक में वो क्या कहते हैं साइंसेस में अच्छे ग्रेड्स चाहिए होते हैं, फिजिक्स में अच्छे ग्रेड्स चाहिए होते हैं, मतलब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं मैकेट्रॉनिक्स की? So that's a great question. So मेरी जो अपनी बेसिक एजुकेशन है that's not originally from Karachi, it's from Nawabshah. So it was like intermediate जो हम लोग कर रहे होते हैं वो वाले पूरे प्रोसेस है. So it was like really difficult for me to Zabas में वो भी mechatronics करना. हाँ, exactly. So वो बहुत challenging था, but again it's about your passion. Right. So मुझे याद है मेरे बैच में almost 45 students थे in the first year, but because it's very difficult program, तो हम सिर्फ 8 graduate हो सके, बाकी सब लोग Zabas से 8 graduate हो सके, जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो O levels, A levels उनका बैकग्राउंड था. दे हैव अ ब्रिलियंट माइंड, स्ट्रेट A's लेकर आते थे, लेकिन दे वर नॉट एबल टू कोप अप विद द एजुकेशन. Zabas में थोड़ा सा डिफरेंट था. प्लस मैकेट्रॉनिक्स में सबसे मुश्किल चीज ये थी कि यू हैव टू स्विच योर हैट्स एवरी टाइम व्हेन यू गो टू इन अदर क्लास. सो आप मैकेनिकल पढ़ रहे हैं, अचानक से आपको कहते हैं कि नेक्स्ट क्लास प्रोग्रामिंग की है या इलेक्ट्रॉनिक्स की है. सो अगर मैकेनिक्स के अंदर आई इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है और आपको एक फार्मूला याद करना पड़ता है, तो आप जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में जाते हैं तो वो जो आई है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो करंट में कन्वर्ट हो जाता है. सो एंड समटाइम्स यू हैव टू गिव 2 पेपर्स इन अ डे. तो आपको याद करना पड़ता है कि अच्छा इसमें जो आई है वो कैसे आइडेंटिफाई करूं, इसमें जो आई है वो कैसे आइडेंटिफाई करूं. तो it gives you a lot of like mind training as well कि आप किस तरह से चीजें चेंज कर सकते हैं. And tell me this कि you said कि 8 बच्चे graduate हुए थे. How many started in Zabas with you in mechatronics? So yeah, so 43 started. So in my 40, section. 43 started and only 8 got graduated. पाकिस्तान में कितने होंगे mechatronics engineers? It's hard to say, but I think mechatronics society है, society for mechatronics engineers. We don't have any kind of society. Because actually वो कहीं पे ना मैकेनिक्स में आते हैं, ना इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, ना सॉफ्टवेयर में आते हैं. सो इट्स लाइक तो सोतेले हैं जहाँ पे, हाँ, तो जहाँ पे उनका दिल चाहता है वहाँ पे जो है. एंड यू आल्सो हैव टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एज वेल. But this is very interesting. So only in a couple of thousand in पूरे मुल्क में, तो how do they find jobs? मतलब employment so that's why जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं वो खैर वो तो बहुत कम ही है, लेकिन उसके अलावा जितने भी सीनियर्स हैं और जूनियर्स हैं, they all are in Germany or in any other part of the world, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज है नहीं और यहाँ पे जॉब्स नहीं है. प्लस मैकेट्रॉनिक्स इज अ जॉब जहाँ पे आपको प्रोडक्शन मैनेज करनी होती है, चीजें डिजाइन करनी होती हैं फ्रॉम द इनिशियल फेज. यहाँ पे कुछ अनफॉर्चुनेटली बनता नहीं है, जिसकी वजह से दे हैव टू R&D तो है नहीं ना यहाँ. रिसर्च इज लाइक बहुत कम होती है रिसर्च. सो जो लोग मैकेट्रॉनिक्स करके दे ग्रेजुएट और फिर बाहर चले जाते हैं, आई एम अज्यूमिंग उनको तो बड़ी लुक्रेटिव जॉब्स मिलती हैं. बहुत ज्यादा. सो इट इज अ गुड फील्ड. इफ यू पास एंड यू ग्रेजुएट यू मेक मनी. Yeah, so it's not just about the money as well, because what I feel is कि आपकी लाइफ में options होने चाहिए. So most of the time बहुत ज़्यादा आप specialized हो जाते हैं, तो you are also like
हार्डली एम्प्लॉयबल हो जाते हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी आप हमारे क्राइटेरिया में नहीं आते. सो इफ यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन योर लाइफ, सो यू कैन डिसाइड ऑन दैट स्टेज, बिकॉज अब जो ट्रेंड्स हैं ग्लोबल वो बहुत तेजी से चेंज होते हैं. Probably शायद बहुत, जब मैं इंजीनियरिंग डिसाइड कर रहा था तो लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी टू गो फॉर द सिविल इंजीनियरिंग बिकॉज बिल्डिंग्स आर ऑलवेज देयर, कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज देयर. लेकिन फिर अब जैसे मैं ग्रेजुएशन के करीब आया, देन द आईटी बूम स्टार्टेड एंड देन AI अब ज्यादा चल रहा है. सो इट्स लाइक यू ऑलवेज हैव टू हैव योर ऑप्शंस ओपन. सो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई होनी चाहिए जो भी इंडस्ट्री आप चूज करें. तो मैं भी आता हूँ. I'll come towards the prosthetics that you've designed, but tell me something. So if you're in mechatronics, have you been following the trend of these very real human-like robots that are being built by some of the General Dynamics ने एक बड़ा advanced किस्म का robot बनाया हुआ है. एक रोबोट बना हुआ है that looks almost like a human. I think वो डिज्नी या किसी एक इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट साइड की तरफ से आया था. I forgot where it was. But walk me through, what is your view on these very lifelike human bots that are being built that may be powered by a lot of this AI information and large language models that are creating this training of understanding, and when you combine this mechatronics with that, I'm sure you are much more familiar. Walk me through this whole situation we expect to see in the next 20 years. I think it's really interesting because I have seen humanoid robots talking with another humanoid robot as well. Like a conversation. The normal conversation that we two are having, right? So there was Sophia, and then there was another robot. I forgot its name. Because उस जगह पे जहाँ पे मैं मौजूद था in a conference, there were like 8 humanoid robots. और वो एक दूसरे से जाके कन्वर्सेशंस कर रहे थे और वो कह रहे थे तुमने आज ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, वेदर ऐसा है, and all those, like it was really having proper conversation, seamless conversation. Exactly. And even जिनके models इतने effective नहीं थे, like for example Sophia was taking some time to answer, तो जो दूसरा रोबोट था वो उसको थोड़ा सा टॉन्ट भी कर रहा था कि मुझे लगता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, that's why you are really, yeah it was that, like it was crazy to see. And like सब लोग humans, we all humans were like just literally watching the show कि ये हो क्या रहा है, and 15-20 minutes they were like just talking like a normal conversation, and the flow of the conversation was fine, precise. Yeah, they were not missing any questions. And even अगर थोड़ा सा लेट हो जाता था दूसरे रोबोट से तो they were asking कि अगर तुम बोर हो रहे हो या अगर तुम्हें कोई और कन्वर्सेशन करनी है, so just let me know, I do understand you are a robot. And they can always also see the structure of the other robot as well. And does the structure of the robot get manipulated based on the interaction? Yeah, it does. So the hands movement, the gestures, the eyeballs, all those like characteristics जो एक human के अंदर होते हैं. And then they were assessing the moods of the surrounding as well, कि लोग कैसे judge कर रहे हैं conversation. So how would they assess that? तो वो inputs उनको कहाँ से मिलते हैं? So they have the 3D scanner cameras in front of them. So उनका एक view होता है. They have multiple sensors and they are able to recognize के expression recognize कर लेते हैं. Not just that, एक तो robot से conversation हो रही है, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी judge कर रहे होते हैं कि जो हमें देख रहे हैं audience, उनके क्या expressions हैं, if they are taking interest, if they are not, if someone specifically is taking interest into it. Audience कितनी बड़ी थी इसमें? So it was just like मल्टीपल शोज थे. एक तो था कि स्टेज पे हो रही थी कन्वर्सेशन, पीछे 100-200 लोगों, बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा. सो इट वाज स्टेज पे रोबोट के सेंसर्स 100-200 लोगों को असेस नहीं, नॉट इन दैट कन्वर्सेशन, बट फिर जब लास्ट डे था तो वो रोबोट्स मूव करके एक दूसरे के बूथ्स की तरफ जा रहे थे. So like खुद से, like some with assistance, like so many, but like was the robot moving autonomously towards its set destination? No, not autonomously. There was like people who were like helping the robot with the remote control and all those things. अच्छा. And वो लेके जाते थे, जैसे आपके पास एग्जीबिशन में एक बूथ लगा हुआ है, वहाँ पे एक रोबोट है, उसके पास लेके जाते थे. कुछ रोबोट मूव कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे. तो जो कर सकते थे वो मूव होके चले जाते थे और फिर कहते थे कि आई रियली फील सॉरी फॉर यू कि आप मूव नहीं कर सकते. तो इट वाज लाइक काइंड ऑफ अ क्रेजी थिंग, बिकॉज जहाँ पे मेरा बूथ था उसके बराबर में एक ह्यूमनाइड था, उसके सामने एक ह्यूमनाइड था, एंड उससे 2-3 बूथ छोड़ के फिर और ह्यूमनाइड था. सो इट्स वाज लाइक इट वाज क्रेजी. तो यू आर ऑब्वियसली क्लोजर टू इट. मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इसमें.
what does 30 years from now look like? पाकिस्तान में तो I don't think robots आएंगे. हम आपस में इंसान नहीं चल पाते हैं एक साथ इंस्ट्रक्शन पे. रोबोट तो दूर की बात है. But West में, what do you anticipate based on what you see in these conferences, right? What's your view? I think it's like जो basic jobs हैं, just like answering some queries, scheduling things. और वो तो अभी से वो तो chatbots हाँ वो होते जा रहे हैं. So basically But humanoid का जो जैसे है ना introduction, the actual humanoid, where will that be used? देखिए, it's the technology जो जब भी डिजाइन होती है, it's not designed as a whole. सही है. So for example, आपने एक बहुत जबरदस्ती चीज बना दी, गाड़ी बना दी, तो अब उसके कुछ पार्ट्स कहीं और भी इस्तेमाल हो सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर किसी और चीज में भी इस्तेमाल हो सकता है. सो आप एज अ रोबोट को या AI रोबोट को एक ह्यूमन फॉर्म में देखने के लिए आइडियलिस्टिकली एज अ ह्यूमन बीइंग आप चाहते हैं कि वो वैसा दिखे, लेकिन वो सिर्फ वैसा नहीं है. इट्स लाइक इट कैन डू लॉट ऑफ कन्वर्सेशन ऑनलाइन, इट कैन हैव द पर्सोना इटसेल्फ. जैसे एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है, उसका क्या पर्सोना है वो हो सकता है. एंड वो जरूरी नहीं है कि वो एक बॉडी के अंदर ही हो, इट कैन बी ऑल अराउंड द इंटरनेट एज वेल. सो वो एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. और जिस तरह से जेनेटिव AI का लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हुआ है कि एक्चुअली वो है क्या, लेकिन इससे पहले लोग AI को कुछ और समझते थे. सो इट हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ लर्निंग फेज एज वेल. जो आप बात कर रहे हैं ह्यूमनाइड का, अब मतलब मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, क्या एक ह्यूमनाइड, देखिए मेरा जो सबसे नंबर 1 एप्लीकेशन जो मेरे दिमाग में आता है, राइट, इज दे विल रिप्लेस सोल्जर्स. ठीक है ना. बट द प्रॉब्लम है कि एक सोल्जर की कॉस्ट होती है, राइट. वॉर के अंदर मतलब आप तनख्वाह तो दे रहे हैं, लेकिन उसकी इक्विपमेंट कॉस्ट होती है, उसकी हेल्थ केयर कॉस्ट होती है, ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, उसकी अपकीप की कॉस्ट होती है, राइट. आप रोबोट्स को एक वेयरहाउस में एक लाइन में खड़ा कर सकते हैं, बट देखें इवेंचुअली सोल्जर को तो आपने कमरा भी देना है, फिर खाना भी देना है, फिर छुट्टी भी देनी है, फिर उसको ट्रैवल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. Of course, a humanoid robot will be more expensive, but to me, the number 1 application is warfare and the replacement of soldiers. Number 2 is healthcare. I was going to say retail, but interesting you say healthcare. Retail में मैं ये सोच रहा था कि जो आप दुकानों के अंदर जाते हैं, a humanoid bot will be able to identify, like you said, sensors लगे हुए, they can identify you as the person and they will immediately retrieve your data कि अच्छा यार ये person है, ये इसकी प्रोफाइल है, हमारे साथ इनका ये अकाउंट है, लास्ट टाइम इसने शॉपिंग ये की हुई थी, तो इसकी हैबिट्स और बिहेवियर्स के बेसिस पे मैं जाऊंगा इनसे, हे वेलकम and let me show you our new collection of pants in grey because you buy grey pants all the time, right? So similarly in let's say a McDonald's or a Burger King में आप जाएं, आपका स्टैंडर्ड ऑर्डर है, उन्होंने फौरन पहचान दिया आपको, आपका ऑर्डर तैयार हो गया. So मैं समझ रहा था रिटेल में इसकी एप्लीकेशन होगी, बट हेल्थ केयर का समझाएं मुझे. So healthcare is also very important because I think जहाँ पे आपको precision required है, जहाँ पे आपकी human labor बहुत expensive है, whatever you are doing, it's part of something that you are doing with your hands, right? So वहाँ पे precision, then decision making is also very important because a lot of the time surgeons are like बहुत ज़्यादा exhaust हो जाते हैं, and then it's really difficult for them to find out the best decision at that stage. So वहाँ पे भी उनकी application है, and then आप humanoid robot को, because the concept is as a human, right? But आप अगर ये सोचें कि आपके पास thousands of eyes होती हैं and like thousands of ears होते हैं and वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए होते हैं, and this is the volume that you have as a whole structure. So वो अभी भी human जो robots हैं वो हमारे साथ integrated हैं. Just like the basic example is your Facebook or social media apps. वो आपका पूरा जज कर रहे होते हैं कि what do you want, what are your desires, आप किन से मिलना चाहते हैं, किन से नहीं मिलना चाहते, किन लोगों को सजेस्ट करें एज अ फ्रेंड ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उनसे कन्वर्सेशंस कर सकें. सो इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, बट दैट्स मोर ऑफ एन एल्गोरिथम, राइट? मतलब मैं अगर ये कहूँ कि लेट्स से अगर अभी मैंने मैकडॉनल्ड्स का जिक्र कर दिया है, आई नो कि मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा, मुझे मैकडॉनल्ड्स का एड नजर आ जाएगा बिकॉज द ऑडियो इज पिक्ड इट अप एंड इट्स गोइंग टू फीड द एल्गोरिथम एंड सो ऑन, राइट? सो I understand from an algorithmic point of view that we are already living in that. But the minute you put a mechatronic structure, ठीक है ना, that's when it gets freaky. It gets weird. Yeah, there's a just पे movies भी बन रही हैं, ठीक है. There was a couple of movies that came out. यार एक वो movie थी किसकी थी कि the guy fell in love with his robot. Her.
ठीक है, फिर उससे पहले अबाउट 10-15 years ago माइनॉरिटी रिपोर्ट के अंदर चीज़ें थी जो दिखाई थी। एक ईथन हॉक की एक मूवी थी विच आई रिमेंबर, जिसके अंदर ये AI बॉट्स वगैरह थे। सो society has been sensitized towards a future which is, for us it's close by, where they will be part of our everyday life. But based on what you're seeing, I'm curious, which part of that life will they come in first? You know? So I think it's like, abhi it's, the hardware is really challenging and it's very expensive. How much does it cost to make one? So for example, it all depends where are you making it. In Pakistan? In Pakistan, if you want to make a humanoid robot, I think initial cost would be 2-2.5 crore तो आपको लग ही जाएंगे एक बॉट के to able to, हाँ, so that's the real challenge with the, और बाहर क्या कॉस्ट होगी उसी? You can do 10x. 10x? Yeah, and I saw a robot playing violin in a cafe. If you are like Geneva, उसमें जाते हैं, so उनके airport पे there is a cafe where just the human ride is like standing at this point, और वो violin जो है ना play कर रही है. So उसका कोई और purpose नहीं है, just to make people fascinate about the technology and all those. So there are a lot of things कि वो आपको inspire करने के लिए बनाई जाती हैं. उनका purpose सिर्फ inspiration देने के लिए होता है, and then you see the results. And because Pakistan is a price sensitive market, so जब मैंने आपको price बताई, so you were like यार ये तो इतना है. लेकिन if you are quoting the same price in elsewhere in the world, तो वो price sensitive market नहीं है. They want a lot of innovation, they want a lot of things. 2 crore तो बुरा नहीं है. हाँ, तो it's nothing for them कि अगर एक आपकी जगह एक रोबोट ही बैठा हो और वो आपके सारे काम कर दे, and you are enjoying in a beach in this weather, so of course please आप you will love to have मैं it, तो commission करने को तैयार हूँ, मुझे replace कर. So this is how you are going to have the humanoid robot initially. अच्छा, तो यानी कि मेरी replacement cost 2 crore रुपए है पाकिस्तान में, हाँ? Yeah. So interesting. So इसमें, but what about अगर पाकिस्तान में बने ये bot for example, right? डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि ऑब्वियसली अगर 20 करोड़ में बाहर बन रहा है और 2 करोड़ में यहाँ बन रहा है, आई मीन आई एम अस्यूमिंग कि आपकी जो दी मटेरियल्स की कॉस्ट विल बी डिफरेंट. द मटेरियल्स वी यूज, इज इट ऑल इंपोर्टेड मटेरियल्स? Most of the time, yeah. So the materials are the same. Yeah, everything is same. Everything is same. It's so just then like, why is there such a big difference in cost? So number one is the cost of manufacturing और cost of जो लोग प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे होंगे, प्रोग्रामर्स, उनकी जो सैलरी होगी या रिसर्च की कॉस्ट होगी. HR कॉस्ट कम है. HR कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है, लॉजिस्टिक्स और बाकी सारी चीजें. सो इवेंचुअली दुनिया में इसीलिए ज्यादा से ज्यादा चीजें थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ही बन रही होती हैं. सो रॉ मटेरियल की कॉस्ट सेम रहेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल तो एक ही जगह से सोर्स हो रहा है वो दुनिया भर में, लेकिन जो उसकी असेंबली कॉस्ट है वो थर्ड वर्ल्ड में जाहिर है सस्ती होगी. हाँ, सस्ती होगी. एंड देन द अदर चैलेंज इज कि जब आप बात करते हैं इनोवेशन की, सो यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ R&D. सो इट्स नॉट समथिंग कि आपने आज बनाया और हो गया. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट और फिर उसको इवॉल्व करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैच्योर होगा. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. बट व्हाई डू वी नीड टू डू द R&D इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री? R&D सारी फर्स्ट वर्ल्ड में रखें और जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहां असेंबली कर लें. अभी यही सारे दुनिया में जितने भी बिग ब्रांड्स हैं वो यही काम कर रहे हैं. सो व्हाट्स प्रिवेंटिंग पाकिस्तान from coming in the forefront of something like this? क्योंकि this sounds like a very lucrative space to be, क्योंकि अभी तो it's the early stages, right? अगर हम अभी से ही घुस के सीमेंट कर लें अपने आप को कि यार we are one of the best, let's say, robotics assembly places in the world, what stops us from doing that? What's the challenge? Exposure. So a lot of the people do not have exposure, like जो हमने अभी conversation की, the cost and the benefits and the international markets. क्यों नहीं है ये exposure? Because हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता. 8 लोग ग्रेजुएट होते हैं इसलिए. हाँ, 8 लोग ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जो उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको कहीं जॉब नहीं मिलती, तो वो उसी यूनिवर्सिटी का पार्ट बन जाते हैं. So they don't have the exposure of the industry. They don't have the exposure of the other part of the world. तो उनको लगता है कि पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, हम तो कुछ नहीं कर सकते. तो ऑलरेडी अपने आप को इतना ज्यादा समझ लें एक सर्कल के अंदर बंद कर देते हैं कि वो सोचते ही नहीं है कि उनकी क्रिएटिविटी से क्या कर सकते हैं. So just if I see myself 8 years ago, so शायद मैं भी ऐसे ही सोचता था कि पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है कि हम compete कर सकें. And then when we start doing work, और जब थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, थोड़ा सा देखना शुरू किया, exposure मिला, then we found out कि यार this is like हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं. All we need is your like थोड़ा सा
समझ ले कैरेक्टर बिल्डिंग की जरूरत है, हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे मसले होते हैं, तो थोड़ा सा और मसला आ जाता है तो हम कहते हैं नहीं यार इस मुल्क से भाग जाओ, कुछ नहीं हो सकता. सो दीज आर द रियल चैलेंजेस दैट वी हैव टू डील विद अगर हमें एज अ नेशन ग्रो करना है. एंड इसमें टू योर पॉइंट कि जो लोग ग्रेजुएट कर लेते हैं उनको इतनी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बाहर कि वो सब बाहर चले जाते हैं, तो यहाँ पे इस मौजू पे बात करने के लिए लोग ही नहीं बचते. एंड देन दे ऑलवेज फील कि यार काश हम कुछ कर सकते हैं अपने मुल्क के बारे में, बट व्हेन दे आर डूइंग समथिंग और एक जगह पे वो स्टक हो जाते हैं, एक लाइफस्टाइल के अंदर आ जाते हैं, सो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर देम टू लीव एवरीथिंग और फिर वापस आए और फिर शुरू से डेवलप करना शुरू करें. So इसमें does government play a role in this, or is it just all private sector that needs to play a role in supporting the, let's say, the ecosystem spread and the build up of the ecosystem? I think the private sector has to lead in this. So government का भी फिलहाल कोई रोल नहीं है. देखिए government का जो रोल है that can help to build ecosystem, to support ecosystem, लेकिन eventually the government is not the expert जो उसको समझ आए कि जी मैंने ये करना है. तो वो एक बड़ा चैलेंज होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी मसला होता है वी जस्ट फोकस ऑन द गवर्नमेंट और कहते हैं कि सारी चीजें वहीं से आनी चाहिए. हाँ, सही बात है, जो कि which is not possible at all. And not possible. And ecosystem के अंदर what are the elements? So what are the total elements required for this ecosystem? Number one, and number two, of those total elements, what's currently missing? I think the major problem is जो हम बचपन से ग्रो कर रहे होते हैं, so there is a mindset कि आपने एजुकेशन लेनी है, एजुकेशन लेने के बाद आपने जॉब पे जाना है, जॉब के बाद आपने अब वो जो जॉब के बारे में सोच रहे होते हैं, so they find out कि स्पेसिफिकली हमने किस चीज़ में जॉब करनी है, तो उनकी क्रिएटिविटी वहीं ख़त्म हो जाती है. इसीलिए जो बहुत मतलब मेरी तरह के एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, तो वो उस सिस्टम में फंसते ही नहीं है. So we are not the one जो रट्टा लगाने की आदत हो या कुछ हो. We just need to have an overview कि चीजें कैसे हो रही हैं, क्या हो रही है. इसलिए you will find lot of brilliant minds, lot of brilliant grades, but वो creativity उनकी stuck हो जाती है just because वो अपना जो brain है उन्होंने डिजाइन ही ऐसा कर लिया है कि हमें जो instructions मिलेगी we just have to follow those. So that means a change in the way education is delivered. Yeah. So that is the one part of the ecosystem that needs to change. Yeah, education not just from the university, from the home as well. ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल हुआ? कुछ नहीं हुआ. So we as a being private, like हमने privately start किया as entrepreneurs, social entrepreneurs, we figure out all the ways and हम इन्हीं पाकिस्तानियों से सीख के आगे बढ़े, right? So जो हम कर सकते हैं, I believe बहुत सारे लोग भी कर सकते हैं. You just have to be passionate about it. Right. Interesting. And what else is missing in the ecosystem? I think funding is one of the major part, but वो भी later on आ ही जाता है. You figure out how to make money, right? Because अभी जो global challenge है वो ये भी है कि जो बहुत ज़्यादा regulated markets हैं, वहाँ पे innovation जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है करना. Because whenever you are trying to do something, तो आपको पता चलता है जी मुझे तो बहुत ज़्यादा reporting करनी पड़ेगी. I have to take permissions. I have to बहुत सारे पैसे चाहिए. अगर मैंने किसी इंटर्न को भी हायर करना है, सो लीगली अगर उसने मुझे समझ नहीं आता तो आई हैव टू वेट फॉर 2 months टू हिम और हर टू रिजाइन. तो ये इतने सारे चैलेंजेस हैं. यहाँ पे तो कोई यहाँ पे कोई भी नहीं है. तो ये तो गवर्नमेंट ने तो फायदा दिया है ना. एग्जैक्टली. सो इनोवेशन आती ही ऐसी कंट्रीज से हैं जहाँ पे इसीलिए जितने भी बड़े ब्रांड्स बने आज से 100 साल पहले वो उन कंट्रीज में बने जब पाकिस्तान जैसे ही हालात थे वहां. सब कुछ चलता था. एग्जैक्टली. सो दैट मीन्स एक एजुकेशन सिस्टम है, रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट यार ओपन हो कि चीजें लोग एक्सपेरिमेंट कर सकें. या बट फॉर द गवर्नमेंट अंटिल एंड अनलेस बहुत सारे लोग कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, इट्स रियली डिफिकल्ट टू कन्विंस गवर्नमेंट कि जी आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज दे आर नॉट द वन. तो फिर वो अवेयरनेस इज द थर्ड. सो देन द थर्ड थिंग इज अवेयरनेस. जब अवेयरनेस आएगी तो फिर पहली दो चीजों पे काम हो सकता है. और अवेयरनेस लाने के लिए stuff like this that we're doing, hopefully that gets the message out there. Exactly. This is the main part of it. So let's switch gears now. ठीक है ना, हमने बात कर ली of a future that is going to be robot driven. You've also promised me you will create a robot of me to replace me. But I want to see what these bionic arms and these prosthetic limbs look like. So I think sure. I think you've brought one along. Yeah, so I have 2 bionic arms. Very nice. One is called Zindagi 2.0. ठीक है. Which means second life. ठीक है. So this looks like a very conventional kind of a prosthetic. Right.
and it has a skin textured और ये किसी का है user भी है हमारा उसमें. And this whole thing is made here, huh? Yeah, whole thing is made here. Just the battery and the glove and the motors. So what happens is जिसका भी prosthetic होता है उसका custom. Can I take the covering off? No, you cannot because अच्छा, वो it's mounted integrated on. है mounted. अच्छा, integrated है, ठीक है. So tell me how. अच्छा, ठीक है. So this is one. This is one, and this one is. That's your favorite. Yeah, my favorite. Huh? So these are for the kids. अच्छा. So this is. So now walk me through what the difference. How does this work? So what happens is जिस तरह से आप. So let's take a step back. Let's say someone is an amputee. ठीक है ना? Let's talk about scenarios that creates that. Is it because कि disease की वजह से amputation की जरूरत हुई? Is it because of a birth defect or deformity? Where do you normally begin and find most of your cases? So basically पाकिस्तान में there are multiple reasons. One of the major reason is shaft cutting machine. जो लोग गांव देहात में चारा काट रहे होते हैं, so उनके हाथ उसके अंदर आ जाते हैं, उसकी वजह से amputation हो जाता है. Second reason is electrocution. करंट की हाई टेंशन वायर की वजह से amputations हो जाती हैं. लोगों के घर के बहुत करीब होती हैं तो करंट लग जाता है. ठीक है. थर्ड रीजन इज कंजेनिटल डिसऑर्डर बाय बर्थ. बहुत ज्यादा केसेस पाकिस्तान में हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज. जो हमने थोड़ी सी रिसर्च की, जो आप स्मोक इनहेल करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और डायबिटीज की वजह से इस तरह के इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं. पाकिस्तान में रोजाना 10 से 11 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते. So एक सेकेंड, यू आर टेलिंग मी कि नेचुरल डिजीज और डिसऑर्डर इज थर्ड, या एंड द एक्चुअल हाथ मशीन में आ गया इज नंबर वन, जो कि अवेयरनेस से प्रिवेंटेबल है. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, प्रिवेंटेबल है, अवेयरनेस से सॉल्व हो सकता है और हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे. एग्जैक्टली, बिकॉज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस कि ये जो लोग हैं, इवन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंट्रोड्यूस, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा ये केसेस हो रहे होते हैं एग्रीकल्चर की वजह से. सो दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस कि जी आपने सेफ्टी लगानी है एंड वी विल पे यू 5,000 रुपीज अगर आप वो सेफ्टी अपनी मशीन के अंदर लगा देते हैं. बड़ी मेहनत की, लोगों ने पॉलिसीज बनाई और दे केम अप विद दिस इनोवेटिव सोल्यूशन, ये 5,000 देंगे. तो लोगों ने क्या किया, 5,000 लिए और वो फिर सेफ्टी हटा देते थे. और वो कहते हैं कि इससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाती है. और सेफ्टी मशीन से, हाँ, सेफ्टी जो उनका एक मैकेनिज्म था उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते और हमें पैसे कम बनेंगे. उसकी वजह से दे हैव टू टेक द रिस्क टू लूज देयर लिम्स. और ये बहुत that should be illegal. Yeah, it is technically. Life and human life की कोई value नहीं होनी चाहिए यार. That is one of the challenge जहाँ price sensitive markets की अब बात करते हैं ना, so people have to go through a lot just because. ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है. आप लोगों को देखें बाइकों पे हेलमेट नहीं पहनते, ये तो and they all know के एक्सीडेंट के बाद क्या हो सकता है, but just because एक जल्दी जाना है बहुत तेज, तो they don't have to wear the helmet. 5 minutes लगेंगे उसके अंदर. So people are willing to take risks just because of the price sensitive market. So now let's say in those situations, what does this do? So how does this work? So what happens is हम mobile के through we have a 3D scanning. ठीक है. So we take the measurements. So you measure the arm. So that's the part that goes in here. Yeah. So वो अंदर चला जाता है. Then there are embedded sensors inside. So there's sensors inside here. Inside embedded. ठीक है. So when you wear the arm, so वो जब आप सोचते हैं अपना limb पुराना जो आप lose कर चुके हैं, that's called a phantom limb. तो आपके जो brain है वो आपके signals भेजता है through your nervous system on your neuromuscular junctions. So जो आपका जो end point cut हुआ होता है, वहाँ पे आपने signals भेजे और वो signals इधर से pick up हुए और उसने फिर micro जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर है वो डिटेक्ट करता है कि किस टाइप का सिग्नल आ रहा है, and it converts into the motion. तो वो यहाँ से जो मोटर है वो यहाँ से सिग्नल्स वायर्स के थ्रू अंदर चले जाते हैं. मोटर ऊपर लगी हुई है, अब मोटर यहाँ लगी हुई है और I can think of opening it and I can close it. Yes. Just yeah. And that is the reason why we have like different users from the different background. उनकी knowledge limited है. बच्चे हैं जो हमारी language भी नहीं बोल सकते. They speak different language. But जब वो पहनते हैं, so we just have to say कि आप like open. Think. Yeah, just do like this. And how long does that connection take to make? Microseconds. Really? Yeah, and that is the why we are the only one in the world who are making bionic arm for the kids. यही रीजन है. the जो कन्वर्सेशन हम पहले कर रहे थे, हमें लगता था कि शायद दुनिया में
लिम्स बहुत इजीली अवेलेबल होंगे, बायोनिक लिम्स बहुत इजीली अवेलेबल होंगे. So ये बच्चों के लिए, ये बच्चों के, just because we don't want to focus, it's like it has to design in that way. तो हम थोड़ा सा ओपन कर देते. तो ये यहाँ से बच्चे का आर्म ओपन होगा एंड बच्चा इसी तरह सोचेगा, ग्रिप कर सकता है, ग्लास उठाना है, पेंसिल से लिखना है, तो लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बाइक भी चला सकते हैं. So you send me a video. What we'll do is we'll play the video in the just to give the clear picture के कैसे करते हैं. So I'm finding that fascinating कि यार you're sending a signal in your brain कि मुझे उठाना है, even though this is not connected to your nervous system. Exactly. Somehow the sensors are picking it up and completing the task. Yeah, and it's really quick. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता. It's really quick. So and lag नहीं है इतना. कोई lag नहीं. It's more kind of a natural way. So मैं गाड़ी चला सकता हूँ. गाड़ी तो बहुत छोटा सा काम है. इस कॉम्प्लेक्स क्या काम हो सकता है इससे? सिलाई हो सकती है? हाँ, लोगों ने सिलाई भी करते हैं. हमारे पास कुछ यूजर्स हैं जिनकी अपनी मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप है, वो मोबाइल का प्रोटेक्टर भी इससे चेंज कर लेते हैं. Really? So मतलब दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. अगर आप खुद भी करना चाहें तो इट टेक्स टाइपिंग नहीं होगी. टाइपिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज इसमें फिर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है कि कहाँ पे आप, क्योंकि ईच फिंगर हैज टू बी मूविंग. सो वी आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट मॉडल जिसमें हमारी डिफरेंट फिंगर्स मूव हो सकती हैं, सारी चीजें. अच्छा, इसमें ये तो आर्म्स दिखा रहे हैं. व्हाट अबाउट लेग्स? सो वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड लेग्स बिकॉज पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेशो है डायबिटिक का. एंड जब हमने, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें डॉक्टर्स ने कहा था कि डोंट मेक आर्म्स, मेक लेग्स. सो वी आस्क्ड व्हाई, तो उन्होंने कहा गरीबों के हाथ कटते हैं, अमीरों की टांगें कटती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द डायबिटीज एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द लेबर इंटेंसिव वर्क. सो दैट वाज काइंड ऑफ अ रियल थ्योरी. एंड इज इट ट्रू? या इट्स ट्रू. एंड इसीलिए आपको बहुत सारी लेग प्रोस्थेटिक्स मिल जाते हैं बिकॉज मार्केट अफोर्ड कर सकती है, कर लेती है. आर्म्स आर द वन जो कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ लोग खुद अफोर्ड कर सकते हैं. ये कितने का है? So this arm costs around 4.5 से 5 लाख रुपए. एंड अगर ग्लोबल मार्केट में हम इसको सेल कर रहे हैं तो इट कॉस्ट अराउंड $8,000. वाओ. सो यानी कि 24 लाख रुपए ग्लोबल मार्केट में, और लोकल मार्केट में ये मिल जाएगा 5 लाख रुपए. और 5 लाख रुपए में आपने एक एम्प्यूटी की लाइफ बदल दी है, चेंज कर दी. एंड नॉट ओनली दैट, हम वी ऑल्सो क्रिएट अ कम्युनिटी आउट ऑफ इट. सो हमारे जो 700 यूजर्स हैं, वी ट्राई टू हेल्प देम टू मोटिवेट. और हमारी इंटेंशन ये होती है कि वो इतना ज्यादा पैसे कमा लें कि हम जितना भी महंगा प्रोडक्ट बनाएं इन फ्यूचर वो खरीद सकें. सो ये वो खुद खरीद के, अच्छा, लेट मी पुट इट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, लेट मी आस्क इट दिस वे, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर दैट पर्सन क्या होता है टिपिकली? सो अगर आप वैसे देखते हैं, इसकी लाइफ अराउंड 3 to 5 years इसकी लाइफ होती है. इसकी लाइफ, एंड देन यू हैव टू रिप्लेस इट. यू कैन मेंटेन इट, कुछ पार्ट्स चेंज कर सकते हैं, एंड इफ यू लाइक तो यू कैन स्विच द कंप्लीट टेक्नोलॉजी एज वेल. सो लेट्स अस्यूम कि 3 years तक एन आईफोन के हर 3 साल बाद आपने चेंज कर दिया. जस्ट लाइक दैट. सो इसका मतलब है कि एक अगर इंसान लेट्स से 10 साल की उम्र में एक हो जाता है शिकार एम्पुटेशन का, तो एवरेज लाइफ अगर 70 साल की है, राइट, तो 60 साल यानी कि हमें जीना है इसके साथ. तो इसका मतलब है 20 दफा आपको प्रोस्थेटिक चेंज करना पड़ेगा. तो 20 दफा का मतलब है 5 लाख टाइम्स 20, तो 1 करोड़ रुपए आपकी लाइफ टाइम कॉस्ट होगी. लेकिन इफ यू पुट इट दैट वे कि मंथली जो उसकी कॉस्ट है वो दैट इज अराउंड 10,000 रुपीज ओनली. सो द पर्सन आफ्टर गेटिंग अ लिम्ब ही इज इजीली एबल टू अर्न मोर देन 10,000 रुपीज, और वो उसको इजीली अफोर्ड कर सकता है. ठीक है. सो बेसिकली लाख रुपए, हाँ, सो 10,000 रुपीज अ मंथ. या तो 10,000 रुपीज अ मंथ में आई नीड एन इनकम स्ट्रीम ऑफ एटलीस्ट 100,000 रुपीज, क्योंकि बिजली आजकल काफी महंगी हो गई है, राइट. तो वो थोड़ा सा उसको साइड पे करना होगा. पेट्रोल भी महंगा है, खाना भी महंगा है. तो मिनिमम आप समझ लें कि 110,000 नहीं, बल्कि आप तो देख रहे हैं कि आप सोलली पूरे घर को चला रहे हैं ना. हाँ, मैं इस तरह देख रहा हूँ ना कि भाई एक एम्प्यूटी अगर लेट्स से एक ब्रेड अर्नर है फैमिली का, राइट, तो ये उसके लिए कमर्शियली वायबल कैसे है? ओनली व्हेन दे आर मेकिंग अबव 100,000, क्योंकि 30,000 की तनख्वाह में ये लगा के बहुत मुश्किल है उसके लिए मुश्किल है, राइट. तो 50,000 की भी तनख्वाह में मुश्किल है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो अगर लाख रुपए होंगे तो फिर आप किराया निकाल सकते हैं, आप बिजली निकाल सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस, बच्चों के स्कूल एक्सपेंसेस हैं. सो देन द क्वेश्चन इज कि ये लगा के ऐसी कौन सा काम किया जा सकता है जो लाख रुपए की तनख्वाह मिल जाए? अच्छा, इन योर यूज केसेस. या सो वी हैव लॉट ऑफ यूजर्स जो पहले कुछ भी नहीं करते थे. आफ्टर गेटिंग अ प्रोस्थेटिक आर्म दे आर एबल टू
go for the tuition, लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, they are able to make more than 100,000 rupees. और ऐसे भी लोग हैं जो 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, they are doing their own businesses as well. और इसी वजह से we are also launching a fund जहाँ पे हमारे users हमें ideas pitch करेंगे for their business. And then we'll help them to establish a business. Very nice. So that they can grow and they can like एक community में भी economical activity शुरू हो जाएगी, and then they'll be able to afford our product in future as well. Right. What a great idea, yeah. This is fascinating to see. And I'm looking at it from an ROI business perspective. Even if I give you the numbers, so अभी हमारे 700 users हैं, they are able to generate around 180 million rupees annually. Wow. So वो collectively जो 180 million 18 करोड़ रुपए वो कमाते हैं collectively, और वो फिर obviously वापस इकोनॉमी में चले जाते हैं. प्लस इसका जो मैं तो खैर नंबर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, I have a finance background तो वो चल जाता है, बट इसकी जो एक इमोशनल पर्सपेक्टिव है ना, बहुत ज्यादा, वो बहुत मतलब you can't quantify that. वो बंदा जो एक एम्प्यूटी था, घर पे थोड़ा सा जिससे कहते हैं ना lack of confidence फील कर रहा था. How do you see, walk me through the change you see from that? हमने तो फाइनेंशियल बात की है, कॉन्फिडेंस में और इंसान के एक रवैये में वो क्या तब्दीली आती है? It's a lot. So हमारे पास जो typically जब लोग आते हैं तो they are wearing a shawl, छुपाया हुआ होता है उन्होंने हाथ, या जैकेट पहनी हुई होती है, पॉकेट में हाथ डाला हुआ होता है, so that people cannot recognize them. क्योंकि unfortunately कहीं पे भी आपको कोई एम्प्यूटी मिलता है, आप उसको जानते हैं नहीं जानते, you really feel sorry for her or him. And most of the time कुछ लोग जाके बात भी करने लगते हैं कैसे हुआ क्या हुआ, so it's like every time they are going through the same story, so वो छुप जाते हैं. So जब वो हमारे पास आते हैं, so they are trying कि वो ज्यादा से ज्यादा छुपें, लोगों से बात ना कर सकें. Then we have a counseling जो हमारे ही users अपना prosthetic arm पहन के उनकी कर रहे होते हैं, just to show them that you can live your life normally, you can have kids, you can have your life, you can have everything what other people can have. वहां से उनको लिफ्ट करना शुरू करते हैं, और फिर इवेंचुअली वो इस स्टेज पे आ जाते हैं कि आप उनको दुनिया के बड़े से बड़े फोरम पे ले जाएं, और थाउजेंड्स ऑफ क्राउड हो, आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, दे विल आंसर इट कॉन्फिडेंटली. तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल ये भी हो जाता है जब हम फंड रेजिंग कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फंड रेजिंग इमोशंस की बेसिस पे ज्यादा हो रही होती है, तो हम यूजर्स को ट्रेन ही नहीं करते कि आपने इमोशंस दिखाने. हम कहते हैं बी वॉट एवर यू आर, ताकि हम आपकी यूटिलिटी ज्यादा फोकस करें, आपकी चीजें ज्यादा फोकस करें. तो उसमें लोगों को लगता है कि यार शायद इसको इतनी इमोशनली इतना ज्यादा, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि वो इतना ज्यादा परेशान नहीं है. सो देयर आर अदर कॉजेज एज वेल, एंड वी डोंट वांट टू चेंज दैट. वी वांट टू सेलिब्रेट देयर डिफरेंसेस, वी वांट टू सेलिब्रेट जो वो हैं. इंटरेस्टिंग. चैलेंजेस दैट यू फेस्ड व्हेन पुटिंग दिस टुगेदर? Thousands of challenges. The biggest one, and how did you overcome that? So one of the biggest challenges, of course, always with the innovation is human capital as well as the funding. So when you have a funding, you can arrange everything. You can like आपके पास funding हो, आप दुनिया की best team hire कर सकते हैं, right? So हमारे पास जो challenge था जब funding से related आया, तो because most of the users are not able to afford as well. So फिर हमने क्या किया, we started helping other industries to build their products just because we had the expertise. For example, we helped Sigma shoes to make sportswear shoes. They export it in Europe. तो हमने वहाँ से उनकी R&D team को जब train किया how to do prototyping, designing and manufacturing. So we learned how to make a socket that can fit the arm properly. तो वहाँ से हमने कुछ चीजें सीखी. इस तरह से there are multiple industries जिनके साथ हमने काम किया, and we learn few things from them, implemented in this R&D. तो इस तरह से करके एक सुपर प्रोडक्ट बन गया जो कि हर जगह यूज हो सकता है. Right. So वहां से फिर हम अपना जो रेवेन्यू था वो लेते थे, वहां से पैसे बनाते थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम R&D के ऊपर एज एन इंजीनियर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करते थे. फंडिंग, yeah, has it been a challenge? Yes, of course. It's really challenging. Just because आप internationally भी या किसी को भी बताते हैं कि you are making these bionic limbs in Pakistan, so it's really surprising for everyone. वो आपको पलट के जो है ना देखते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में सरप्राइज में फंस जाते हैं, पैसे कुछ नहीं मिलते. हाँ, so ये है, this is a challenge. Then we don't have the innovation grants available, not from the private sector as well as from the government sector. It's really challenging. तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर यकीन दिलाना कि नहीं ये हो सकता है actually और हो रहा है.
right. तो वो बहुत एक फिर अभी तो खैर वी हैव बियर्ड्स और थोड़ी सी वाइट भी हो गई हैं. तो जब हमने शुरू किया था तो वी वर लाइक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स गोइंग टू समवन और कहते हैं हम ये बायोनिक लिम्स बनाते हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट है एंड लाइक वी हैव यूजिंग दिस. तो वो बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज इट्स नॉट common. So, but why the limbs, right? Matlab, you could have gone using mechatronics and become something completely different. Why this? The limbs. So it has an interesting story. So when we started a business, so for the product designing and development, तो मेरे पास एक random email आया और उसमें था कि because you guys are robotics engineers, you are making products. I have a little boy. His name is Mir Bayan Baloch. Can you make a prosthetic limb for my boy? So we thought कि यार चलो let's explore और कोशिश करते हैं कि कुछ उसके लिए बनाए. At that moment जब वो family आई हमारे पास उन्होंने उनका 5 साल का बच्चा था. He was not able to speak उर्दू properly because वो तुर्बत से थे और उसको या तो बच्चे को बलोची आती थी और इंग्लिश भी टूट के उसने सीख रहा था. So when we asked him कि आपको किस तरह का prosthetic चाहिए, so he said I need an Iron Man hand. अच्छा उसने कहा. So that story connected the Marvel right. thing to that kid, right. और वो eventually इस चीज में convert हो गया. Amazing. And what's probably the most touching story you've heard from someone that you gave, this bionic limb to? So every story is really special. Like there are very special moment when somebody is receiving their prosthetic, somebody lost it. They thought that their life is over. We have seen people who was trying to commit suicides before getting something like this, and after having prosthetic, their whole life changed. You will find them as a different person. लोगों की divorce हो जाती थी just because. Really? Yeah. It's really unfortunate and it's really common. उनको काउंसिल करना समझाना. तो क्या मियाँ बीवी को छोड़ता था बीवी मियाँ को छोड़ देती थी? दोनों होते हैं दोनों ही होते हैं इक्वली कॉमन. हाँ इक्वली कॉमन. लेकिन गांव देहातों में बिकॉज फीमेल्स आर द वन हु आर यूजिंग दैट मशीन और उनकी एम्पुटेशन बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है तो उसकी वजह से फिर वो इस तरह से केसेस आ रहे होते हैं. So it's really difficult. It's not just about making prosthetic. Initially we thought it's just about prosthetics, but it's the human science. Like आपने उनकी सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है. बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अक्सर लोग हमारे पास देयर वाज अ टाइम एक हम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहाँ पे इनिशियली एक दुआ से स्टार्ट होना था. तो हमारे जितने भी यूजर्स थे ना वो इसी बायोनिक आर्म से दुआ मांग रहे थे. तो मुझे उस वक्त पता नहीं चला था. वी जस्ट टुक अ पिक्चर और पिक्चर के बाद मैं पिक्चर स्क्रॉल कर रहा था एंड देन आई सॉ कि यार ये एक बंदा है मेरा उसके दोनों हाथ नहीं है एक ही हाथ उसको लगा हुआ है और वो उसी हाथ से दुआ मांग रहा है. तो मैंने कहा यार ये कितना उसके लिए पावरफुल है कि मतलब मेरे पास ये नहीं होगा तो मैं दुआ किस तरह से मांगूंगा. सो इट्स बिकॉज इट्स रियली पर्सनल फॉर देम राइट. तो ये बड़े मोमेंट्स होते हैं. फिर एक राशिद जुबैरी हमारा यूजर he was born that way although he had done his masters from Cordova University वहाँ से फाइनेंस का सारा बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग. एंड जब हमने उसको फर्स्ट टाइम प्रोस्थेटिक दिया तो ही वाज लाइक सीधे हाथ से पानी पी के ही इज अराउंड 31-32 years old और वो कोने में खड़े होकर रो रहा था. सो मैंने कहा कि यार क्या हुआ. तो कहने लगा यार मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी अपने हाथ से पानी पी सकूंगा. सो दीज आर लाइक स्मॉल मोमेंट्स जो आपको जो है ना मोटिवेट करते हैं. एंड जो आप बात कर रहे थे कि 1000 challenges आपके पास आए और हाउ यू आर ओवरकम इट. सो वो जो मेन रीजन था ओवरकम करने का बिकॉज दीज पीपल वर द इमोशनल सपोर्ट टू अस कि हमें बैठने नहीं देते थे. हमें रोज फोन करते थे. रात को 4 बजे भी हमें कॉल्स आती हैं कि जी मेरा हाथ नहीं है क्या बन जाएगा. बिकॉज इट्स दे डोंट वांट टू मिस अ चांस. दे वांट टू लाइक और वो पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे होते हैं मेजरमेंट्स एंड एवरीथिंग. सो it's not just about technology. It's about how we are integrating the positivity, how we are like कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से. And that's why it's the best prosthetics in the world because it has seen the worst conditions in the world जो कि शायद हम देख सकते हैं. इसीलिए जो recent हम development कर रहे थे यूक्रेन के लिए, so it was really surprising for us to find out the whole Ukraine with the whole technology available of the world. They don't have the sweat-proof sensors जो hot and humid climates में चल सकें. They don't have the measurement option available. और उनको वो सिर्फ 200 prosthetic limbs in a month produce कर सकते. Really?
Yeah, the whole Ukraine. और यहाँ पे कितने? और हम जो है हम 500 limbs in a month produce कर सकते हैं. Wow. और जो fitting process है that is also different. Plus the cost of the prosthetic that they are paying for is $8,000. और जो हम करते हैं so we were trying to help them out कि हम किसी तरीके से आपको support कर सकें. It's not just about the technology, but we really wanted to do it from Pakistan just because लोगों को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज भी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो आप सबसे आगे है और आपकी सबकी हेल्प कर सकती है. How did this is fantastic, yaar. I'm just fascinated and my mind's working in 10 ways to think about how you can amplify and spread the message. But you've already gotten the message out. You got the Forbes 30 under 30 for Asia. Yeah. Tell me about how that's helped you. It really helped us a lot because most of the time it's आप कोई भी क्लेम करते हैं और एक लोकल सतह पे कर रहे होते हैं. सो इट्स रियली डिफिकल्ट कि आप ग्लोबल स्टेज पे भी अपनी वही बात मनवा सकें. सो वी हैड फ्यू क्लेम्स के कॉस्ट इफेक्टिव है, AI इंटीग्रेटेड एंड ऑल दोज थिंग्स. सो जब वो चीज़ आप क्लेम करते हैं सो फोर्ब्स डू अ लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस. दे हैव मल्टीपल कॉल्स एंड एवरीथिंग. तो जो मुझसे इंटरव्यू कर रहा था, सो दैट गाय वाज लाइक इंडोनेशियन गाय. सो उसने कहा कि और भी तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आई वुड सर्च इट एंड एवरीथिंग. तो फिर जब मुझे पता चला कि वो इंडोनेशिया से, तो वी हैव अ फ्यू इंटरनेशनल आर्टिकल्स, बल्कि फ्यू नहीं मैनी इंटरनेशनल आर्टिकल्स. उसमें जो इंडोनेशियन आर्टिकल था उसकी लैंग्वेज में लिखा हुआ, आई सेंड हिम दैट. और जब उसने पढ़ा तो ही फाउंड आउट कि हाँ यार, दिस इज लाइक it's something unique and different. Interesting, fascinating. One other question I have: where do you see yourself with this project in the next 10 years? I think it's not just prosthetics, it's a whole biorobotics. So technically अगर हम बहुत simple way में बात करें, so the Robocop, I am sure you have seen it. समझ ले हम Robocop build कर रहे हैं और बाकी लोग जो हैं इस वक्त जो दूसरा रोबोट था वो बिल्ड कर रहा है, ह्यूमनॉइड रोबोट. So it's so you're that. Still behind, huh? No, it's still not behind because we have a decision. हमारे जो users हैं, we don't want to eliminate them. So we want them to have more features than a normal human being. Right. और वो उसको यूटिलाइज करें. अभी भी कुछ फीचर्स इसमें ऐसे हैं जो हमारे अपने असली हाथ में नहीं होते. Yeah. So आगे चल के इसके अंदर और फीचर्स ऐड हो जाएंगे and then they'll be able to do lot of things much faster, much in effectively जो एक मशीन कर रही हो या कुछ और कर रहा हो. इसी तरीके से there is a theory behind कि in future लोग अपने limbs deliberately कटवा के prosthetics की तरफ जा रहे होंगे because biological limbs gradually weak होते हैं और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है. So yeah, so maybe you led me into, I have a hypothesis, ठीक है ना. So मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं. उस hypothesis का नाम है L1 L2. So the idea is that there's a lot of material out there on life longevity. आजकल बड़ी research हो रही है. There's a guy named Brian Johnson who's the most researched human on the planet. He measures everything he eats and he eats a very specific diet, specific type of sleep in the specific environment. उसके जो खाने पीने का सालाना उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है ना is $1 million. And his goal is to be able to live effectively till 130. Yeah. The whole thing is कि यार longevity तो आप ले लें, मतलब आप 100 साल तक जी लें, लेकिन आपकी जो limb function है, muscles हैं, ये सब चीजें after 70 deteriorate करती हैं. Right, so one of the hypotheses that I share with my friends is you'll have L1, which is you live your life till the age of 65, 70, you retire, you wind that life up, सब आपको अपना हिसाब किताब करके पूरा close करके आपने कहा चलें thank you very much, I am now entering life 2, क्योंकि you've eaten well your entire life, so your organs are functioning well. बात बनी limbs की. Limbs में आप exactly what you said, knee replacement, hip replacement, joint replacement, वो तो already हो रहा है. बिल्कुल ऐसा ही. ठीक है. Now this technology will be so far advanced कि as long as I take care of my organs and my skin and my sight, और sight भी replacement हो जाएगी. Chips भी अब लग रहे हैं कि वो बंदा chess खेल रहा था Elon Musk की, क्या है वो company? Neuralink का chip लगा and the guy who had no limbs, hands or legs, is playing chess using his brain. Yeah, exactly. So now you can enter life 2 as a brand new bionic person and live till 130, 140. Yeah. Right?
Do you think that is a reality or Yeah, it is that is- feasible? that You're is. the only one who agrees with me on this. Yeah, no, that is because all my friends think I'm crazy. no, that is, and the humanoid robot that you want to build, maybe in future, उसमें आप like खुद जा सकते हैं. It's अच्छा अब खुद अपने आप को नहीं awareness तो transfer नहीं हो सकती. I don't believe that awareness transfer. no, awareness is like different, like, but आप अपना the way you think, right? Yes, well, so it's like an LLM. Yeah. So you train the bot on you, so it becomes a you extension, Extension, but more aware. but more aware. Why more aware? Because it has a lot of information to process at one time. Right. So उसकी processing speed ज़्यादा है. And yeah, processing speed भी ज़्यादा है, and he can take the decision based on facts. So Without emotion. Without emotion. So the only problem with the robots is emotion right now. And But doesn't that what makes humans humans? Is the emotion part of it? that's a different thing. So I don't know why we compete humans with the robots, because those are the different species. Yeah. Humans are the different species, and there are a lot of times जहाँ पे अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. अगर हमें कोई ह्यूमन असेस करेगा तो वो हमारे प्रोडक्ट्स को देखेगा, चीजें देखेगा, उसके साथ साथ इमोशनली उसके साथ कनेक्ट होगा, देन ही और शी विल टेक अ डिसीजन. लेकिन अगर यही एक रोबोट असेस करे और उसको आप ये बोलें कि क्या पाकिस्तान से प्रोस्थेटिक बन सकता है, तो वो हमारी न्यूज देखेगा, हमारे मीडिया देखेगा, हमारे लोगों के लाइफस्टाइल देखेगा और उसके बोलेगा इट्स 0.001% possible. Right. सही है. So it's because based on the fact. Yeah. So it's not going to assess us कि हम क्या चाह रहे हैं और हमें हमारे इमोशंस कैसे हैं. So it will based on the data, और वो डाटा जो भी होगा मैक्सिमम उसी को बिलीव कर. So you need the human then. Definitely. Without humans you cannot do lot of things. You cannot creatively think कि उसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं. So creativity is a part that will remain with the humans. And what I feel in future, the only skill that a human need is something कि आप उसको differently कैसे सोच सकते हैं. So इसमें I will add to that. देखें वो कहते हैं, they call them black swan events in the financial world, कि वो event जो पहले कभी नहीं हुआ. 2008 का जो हाउसिंग क्राइसिस आया था, जिसको द ग्रेट रिसेशन कहते हैं, उससे पहले कभी भी घरों की वैल्यू दुनिया में, अमेरिका में इस तरह कभी नहीं गिरी थी. ठीक है ना. कभी भी सितंबर 11th 2001 से पहले कभी भी ऐसा वाकया नहीं पेश आया कि बिल्डिंग्स को टावर्स में मार के गिराया जाए. ऐसे दिस वाज बिल्कुल ऐसे ही है. राइट. फर्स्ट टाइम. अच्छा, इसी तरह देयर इज न्यूक्लियर बॉम्ब जो गिरा था. देयर वाज नेवर अ न्यूक्लियर बॉम्ब दैट डेसिमेटेड 2 cities, right? True. So there have been these black swan events over time. Large language models for AI all depend on existing data, True. right? Stuff that has happened. Black swan events have happened. These black swan events that have not happened, that depends on human creativity. True. The question is, can an AI thinking bot that functions like this, can it create a black swan event if it's running off of only pre-existing data sets? Can it create a new data point that, let's say, a human could have created? Can it create that kind of a data point using its prior sort of knowledge base? I think with some extent it can, but it cannot predict the actual timeline, and like there is it has a lot of complex answer, क्योंकि कुछ चीजें बिल्कुल नई तरीके से हुई हैं. There are number of possibility कि plane could hit the building. This is the possibility from the initial phases as well कि अगर high rise होंगी, that's why we don't build high rise buildings, दूर रखते हैं airports and सारी चीजें. So there was a possibility, somebody thought about it. So जो चीज possibility So that's में the है, question. So can the AI create that possibility that, yes, yes, it what can. if we do this? Yes, exactly. It can. But eventually, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, जैसे कोविड एक ऐसा इवेंट था जो probably नाइव थे लोग, पता नहीं था क्या होगा, कैसे होगा. So there were no information available, कैसे प्रिवेंट करना है, क्या हो सकता है. So वो वाली चीजें जो है ना, आप AI के थ्रू नहीं कर पाएंगे. एक एग्जाम्पल देता हूँ. इन द 1700s 1600s के दौरान एक ट्यूलिप का एक बूम आया था. द डच बेसिकली एक ट्यूलिप के अंदर एक डिजीज आई थी that made the tulip look very unique and very different, and at one point in time the values of tulip, the flower, which is going to die in a few days, was greater than the value of gold. Oh wow. Right? Now
logically, that makes absolutely no sense. Why would a flower be more valuable than gold? And this is studied in economic theory and everything. Could an AI bot predict or create a situation like that? Because logically, it makes no sense for a flower to be more valuable than gold, even though knowing that flower will die in 5 days. And it's a diseased flower. So that's again, human involvement is really important to that. So AI जब तक काम नहीं करेगा, जब तक आप उसको कुछ prompts नहीं देंगे, Correct. जब तक आप उसको train उस तरह से नहीं करेंगे. So probably the human who is giving the prompt has the knowledge कि वो क्या create करना चाहता है. So again, this is the creativity of human, not the AI. AI can assist him or her to lead in that position कि वो कैसे हो सकता है, but human is the one who think about something कि अच्छा ये ऐसे होगा, and I want to take AI into that direction. So being seeing AI as a like counterpart of human is a wrong theory. What I believe, you should see AI as a tool. आप कुछ करना चाहते हैं, आपको शायद 10 साल लगते करने में, वो आप certain कम टाइम के अंदर अचीव कर लेंगे. So that's the only primary goal for AI, and that is what the AI will be helping people in every field. Got it. This was fascinating, Anas. Thank you so much for taking out the time, for bringing these here to expand my horizons and my learning and my understanding of the subject. I think what you're doing is phenomenal work. I think, and the fact that you're doing it at such a cost-effective price, I mean, power to you, yaar. And if there's any way that we can be helpful to create that awareness, because I think वो सबसे बड़ा जो एक missing component है awareness का है. We're here to assist and help. And best of luck. Thank you so much. Thank you for inviting me, and it was a great having conversation, because we also miss this kind of conversation, because यहाँ पे the kind of content is really difficult to find कि हम अपनी knowledge maximum लोगों को transfer कर सकें. नहीं बिल्कुल सही, हम बैठे भी इसीलिए हैं यहाँ पे. चलें, thank you all. Thank you for tuning into Digitales. Stay tuned for more episodes like this. We're going to get some fantastic people coming up in the next few episodes. Like, subscribe, bell icon, click करें, comments दें, log into our social handles. We're on Insta, we're on Twitter, we're on TikTok, we're on LinkedIn. So follow us and share feedback on what you want to see next. Bye-bye.